السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 ٹی وی کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ راجیہ سبھا کے ایک انتخابی امیدوار کے نام کو این سی و کانگریس کی جانب سے قطعیت نہیں دی جا سکی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ہے جاری۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی ناگزیر نائب وزیر اعلیٰ اور سکینہ یٹو کے بیانات جموں کشمیر کے تئیں بھاجپا کی پالیسیوں کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ جے کے اے ایس 2019 کے افسران پروبیشن کے باوجود محرومی سے دوچار، وحید الرحمان پرہ نے این سی سرکار کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ معراج ملک پر پی ایس اے ختم ہونا چاہیے، آغا روح اللہ کا مطالبہ، حکومتی کارکردگیوں کی بہتری پر دیا زور۔ سانبا میں سرحد کے قریب پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے، فورسز کو کر دیا گیا چوکس، مہلوک فوجی اہلکاروں کو ایل جی نے پیش کیا اخراج بعد از مرگ۔ سری نگر میں علماء جموں کشمیر کا منعقد ہوا اجلاس، روسٹر چکن سے متعلق کیا گیا تبادلہ خیال۔ اور جموں کشمیر میں کانگریس کی ووٹ سے متعلق مہم جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سانبا میں ایل اے سی کے قریب 2 مشتبہ ڈرونز فضا میں دیکھے گئے، جس کے بعد فورسز نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے سرحد سے متصل علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔ خیال رہے ماضی میں ڈرونز کے ذریعے ہتھیار اور منشیات گرائے جانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح سانبا میں بین الاقوامی سرحد کے قریب فضا میں 2 مشتبہ پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے، تاہم بھارتی فورسز کی چوکسی اور کسی بھی کارروائی سے قبل ہی مشتبہ ڈرونز سرحد پر واپس پلٹ گئے۔ مشتبہ ڈرونز کے دیکھے جانے کے ساتھ ہی بی ایس ایف کے جوانوں کو سرحد پر چوکس کر دیا گیا ہے۔ چلیاری اور چملیال علاقوں میں فورسز نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ عام اعلانات کرتے ہوئے مقامی عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے مشتبہ پیکٹ، بیگ یا کوئی بھی نامعلوم ساز و سامان کو دیکھیں تو فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس کو کی جائے۔ آخری اطلاعات کے مطابق سانبا میں سرچ آپریشن جاری بتایا گیا ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ کوکرناگ میں انسداد عسکریت پسندی مہم کے دوران برفیلے طوفان کی زد میں آ کر ویر گتی حاصل کرنے والے 2 بہادر فوجیوں کے تابوتوں کو آج پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سلامی پیش کی گئی۔ ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے بہادر فوجیوں کے تابوتوں پر پھول مالائیں پیش کی اور ان کی قربانیوں کو خراج پیش کیا۔ واضح 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی شب کشتواڑ رینج میں کوکرناگ میں سخت موسم کے دوران لاپتہ ہونے والے ان 2 فوجی اہلکاروں، جن میں ایک کی شناخت پالاش گھوش اور دوسرے کی سوجے گھوش سے کی گئی تھی، جن کی مسلسل تلاش کے بعد 9 اور 10 اکتوبر کو ان کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ جموں کشمیر کے 4 راجیہ سبھا نشستوں میں سے 3 نشستوں پر انتخابی امیدواروں کے ناموں کا گزشتہ روز این سی نے اعلان کیا، جبکہ چوتھے نمائندے سے متعلق کانگریس اور این سی کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ تفصیلات کے مطابق این سی نے جس نشست کی فراہمی کا کانگریس کو پیشکش کیا ہے، کانگریس اس سے مطمئن نہیں ہے، تاہم کانگریس جس نشست کا مطالبہ کر رہی ہے، این سی نے اس پر رضامندی نہیں دی۔ کانگریس ذرائع سے مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق این سی کی جانب سے مناسب نشست حوالے نہ کی جائے گی تو پھر کانگریس مقابلے سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ تاہم راجیہ سبھا حلقہ جات کے نشستوں کے معاملے پر کانگریس اور این سی کے درمیان بات چیت کا عمل جاری بتایا گیا ہے۔
वज़ीर सेहत, समाजी बहबूद व महकमा तालीम सकीना यट्टू ने आज पोम्बे कोलगाम में प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना की लॉन्चिंग के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सकीना यट्टू ने अवाम पर जोर दिया कि वो हुकूमती स्कीम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सकीना यट्टू ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को नागुज़ीर करार दिया। इस मौके पर MLA ड्यूसर, DDC चेयरपर्सन के बशमूल महकमे ज़िला इंतज़ामिया के आला ओहदेदार मौजूद रहे। में क्या क्या स्कीम्स है और वो किस तरह से अपने ज़मीनों को उन ज़मीनों पे उन स्कीम्स का अडॉप्ट कर सके ताकि उनकी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो और उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक नीड होगी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको फराहम करता है, सरकार फराहम करती है। यही उम्मीद करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, हमें अगर अब उम्मीद है अल्लाह के बाद तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला देंगे। और जो जम्मू कश्मीर में रियासत जो एक पुरानी रियासत थी, हमने तो देखा हुआ है यूटियों को रियासत बनते हुए, लेकिन रियासत को यूटी बनते हुए हमने पहली बार देखा है और वो शायद जम्मू कश्मीर ही होगा और कोई ऐसी जगह नहीं होगी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई कर रहे हैं, हियरिंग हुई है, उन्होंने कुछ टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। और पहले जब ये स्टेट ख़त्म की गई है उस वक्त कमिटमेंट थी कि ये स्टेट जो है जल्द से जल्द वापस दी जाएगी जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा हक़ है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर रियासत जो है पुरानी रियासत थी, हिंदुस्तान का ताज मानी जाती रियासत थी, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये रियासत जो जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिले, ये हमारा हक़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक़ है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से सिर्फ NC को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का ये मुतालबा है। लोगों ने शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किया, सबका सब बह गया। वो लोग, उनको क्या जवाब है? लेकिन उनको जब इनको बीजेपी वालों को पूछो, यही जो LOP साहब हैं जो लॉलीपॉप रोज देते हैं, उनको पूछो कि भैया जरा इस पे बोलो कि आपने जहाँ से 28 सीटें ली हैं इसमें क्या मुआवजा आपने दिया? किसानों के खेत बर्बाद हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, दुकानदारों की दुकानें खत्म हो गई, क्या आपके रिश्तेदारों के लोगों के घर नहीं उजड़े क्या? लेकिन बताओ कौन सा मुआवजा आया? एक मुआवजा, उस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ आसान बात है। और मैं आप खासकर मैं जम्मू के मीडिया से अपील करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको सवाल पूछिए, वक्त आ गया मेरे भाई, नहीं तो वरना हमारी उम्रें निकल चुकी हैं। ये सुरेंद्र चौधरी अकेला कब तक बोलेगा? मैं कब तक आप लोगों की बात रखूंगा? बात यह है कि बीजेपी हमारे बच्चों को, मैं बात कहता हूं जब LG साहब को कि 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री पैकेज आया 2021 में। जब वो पैकेज आया, जम्मू की इंडस्ट्री सारी को पूछो जो पुरानी लगी हुई है, वो कहती है हमें 1 रुपया नहीं मिला। कश्मीर में जाओ, कश्मीर की इंडस्ट्री को पूछो, कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला। हम दुकानदारों को पूछते हैं, कहते हैं जनाब हमें 1 रुपया नहीं मिला उसका जो इंडस्ट्री पैकेज आया था। फिर वो 28,000 करोड़ गया कहाँ? जब हम LG साहब को कहते हैं कि जनाब इसका जो 28,000 करोड़ का पैकेज जो आपने बांटा उसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोग ये सवाल खड़ा करते हैं? ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग, रोज कई लोग हैं, कई तो पत्रकार ऐसे हैं जो पैसे लेके लोगों से न्यूज़ लगाते हैं मेरे लिए। मैं जब साबित करता हूँ 1 रुपया, मुझ पर कोई कह दे कि सुरेंद्र चौधरी 1 रुपया भी खाया किसी, आए मेरे सामने बोले ना। इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि इलीगल माइनिंग जो कर रहा है, मैं LG साहब को कहता हूँ लीजिए DC के खिलाफ एक्शन, लीजिए आप SSP के खिलाफ जो SSP की जुडिक्शन में इलीगल माइनिंग हो रही है। रही DMO की बात, मैं आपको कहता हूँ जो DMO कहता है मैं सस्पेंड करता हूँ, लेकिन सस्पेंड करने में अड़चन कहाँ है? ये सेक्रेटरी किसका है? वो LG साहब का। IAS अफसर किसके हैं? LG साहब के। इसलिए मैं आपको सबको कहूँगा, आपको समझने की जरूरत है, मत किसी का कैरेक्टर एसिनेट करिए। ऐसा जो सच्चाई वो सच्चाई बोलिए, और मैं सच्चाई बोलता हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। कल भी आपने देखा तो कई ऐसे शक्लें आई, अच्छा एक टोपी पहन के बोल रहा है, लेकिन उसको कोई पूछे ये टोपी किसी कौम का, ये जरूरी नहीं कि किसी मुसलमान की टोपी है, ये टोपी जम्मू कश्मीर के लोगों की टोपी है।
وہ لوگ ہمارے کئی جو لوگ ہیں جو اب ہماری پگ ہے، ڈوگروں کی پگ ہے، کوئی ہماری پگ کو پہن کے کوئی ایسے دکھائے، کوئی مانو گے آپ لوگ؟ آپ کسی کے دھرم کے، کسی کے کلچر پہ، کسی کے پہناوے پہ کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ میرے بھائی لالی پاپ ایسا دوں گا نا اگلی بار کہ لے کے نہیں گھوم سکو گے. اور میں آپ کو کہوں گا کہ رکن پارلیمنٹ سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے جموں کشمیر سرکار کی کارکردگی سے متعلق اٹھنے والے سوال پر میڈیا کی جانب سے پوچھے جانے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کارکردگی سے متعلق اگر عوام سوال کرتے ہیں تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اقدامات کی ضرورت تھی وہ پورے نہیں ہوئے. انہوں نے معراج ملک پر عائد PSA قانون کے خاتمے پر زور دیا اور ان کی رہائی پر زور دیا. کارکردگی سے مجھے خوش نہیں کرنا ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنا ہے. اگر لوگ راضی ہو تو میں راضی ہوں. اگر لوگ سوال کرتے تو ان سوالوں کو سنجیدگی سے سننا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے. تو جیسا کہ لگتا ہے ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے کہ جتنا کچھ پولیٹیکل فرنٹ پہ کرنے کی ضرورت تھی وہ سب کچھ نہیں ہوا. جو انٹینٹ دکھانے کی ضرورت تھی مجھے ذاتی تو لگتا ہے کہ وہ انٹینٹ ابھی تک دکھانے. گورنمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کے لیے ایفرٹس کرنے چاہیے، اسپیکر کو بھی ایفرٹس کرنے چاہیے. پہلے تو ان کا PSA ختم ہونا چاہیے. یہ ریلیونٹ لا نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی اس غلطی کے لیے PSA ریلیونٹ لا نہیں ہے. پہلے تو PSA وڈرا ہونا چاہیے. دوسرا اسپیکر کو بھی، آنریبل اسپیکر کو بھی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ معراج ملک جو ہے وہ اسمبلی سیشن اٹینڈ کر پائے اور ان کو اس کے لیے جتنے بھی ایفرٹس لگانے پڑے وہ لگانے چاہیے. BJP کی نیت نہیں ہے کہ کشمیریوں کے جو چھینے ہوئے حقوق ہے اس کو واپس دے. وہ ڈس امپاور ہی رکھنا چاہتے ہیں ہمیں، اس سے بھی زیادہ ڈس امپاور. LG جموں کشمیر منوج سنہا نے آج سری نگر کے SKICC میں منعقدہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح انجام دیا. اس پروگرام میں ادبی فن موسیقی کے لیے اپنی بہترین خدمات انجام دینے والے ادیبوں، فنکاروں، موسیقاروں میں اعزازات تقسیم کیے گئے. کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے اس آیوجن میں آئے ہوئے سبھی آمنترت اتھی گण، دیش کے وبھن حصوں سے آئے ہوئے رائٹرز، تھنکرز، آیوجن سے جڑے ہوئے سبھی سمانت مہانبھاؤ، دیویوں، سجنوں، متروں اور بچوں، سب سے پہلے میں اس لٹریچر فیسٹیول میں آئے ہوئے سبھی اتھیوں کا اور پارٹیسپینٹس کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں. ہماری سنسکرتی میں کہا گیا ہے کہ ودوت نرپتوچم نیو تلیم کداچن سودیشے پوجیتے راجا ودوان سروتر پوجیتے. ودوان کو دیش کے بھیتر اور پوری دنیا میں سمان ملتا ہے، اور رگ وید میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا. PDP یوتھ لیڈر رکن اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے جموں کشمیر کی NC حکومت کی کارکردگیوں کو نشانہ بنایا. ساتھ ہی انہوں نے PDP لیڈر نے 386 کے تحت مقرر کردہ 4 سالہ پروبیشن کی حد سے زیادہ سروس مکمل کرنے کے باوجود 2019 بیچ کے JKAS افسران کی مسلسل پروبیشن کی حیثیت پر تشویش کا اظہار کیا. میں بہت وعدے کیے عمر صاحب نے اور بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، پر انفارچونیٹلی اف یو لک ایٹ اٹ جو ریزلٹس ہے، فورگیٹ دا الیکٹورل پرومسز، اس کے بعد جو انہوں نے بجٹ میں بھی مطلب وعدے کیے تھے، ابھی تک 6 مہینے کمپلیٹ ہونے کو ہے بجٹ کو اور 1 سال حکومت کو کمپلیٹ ہونے کو ہے. ایکشنیبل چیز ابھی تک زمین پر کچھ بھی نہیں ہوئی ہے انفارچونیٹلی. چاہے وہ فری راشن کی بات ہو، فری گیس سلنڈر کی بات ہو، چاہے وہ فری تعلیم کی بات ہو، یا انہوں نے کئی ایسے وعدے کیے 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کی، یا ایک امپلائمنٹ گارنٹیز ایکٹ لانے کی، ریزرویشن کو ریشنلائز کرنے کی، پولیٹیکل پرزنرز کی واپسی کی. تو آئی تھنک ابھی تک گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو ہم سبھی وقت دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت میں ہمیں سوال پوچھنے کا حق ہے کہ آپ آج تک
एक साल में आपकी डिलीवरी क्या है. देयर इज़ नथिंग टेंजिबल दैट द गवर्नमेंट कैन क्लेम कि हमने इस साल में ये चीज़ें अचीव की हैं. हमारी कोशिश है कि बडगाम में इंशाल्लाह हम बड़ी मेहनत करके, सेकंड टाइम पे थे पहली बार, तो बड़ी मेहनत करके इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस बार पीडीपी का वहाँ पे माहौल भी है ज़मीन पर, और लोग चाहते भी है कि वहाँ तब्दीली होनी चाहिए, और जो हमारे कैंडिडेट है वो नौजवान भी है. तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि पूरी मेहनत करके एक बार फिर पीडीपी का पैगाम लेकर, मंशूर लेकर लोगों के पास जाएंगे और उस पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इसी दौरान एनसी के सीनियर लीडर व रुकन असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने आज ड्यूसर इलाके के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और म्यूनसिपल कमेटी काजीकुंड का दौरा किया और उन्होंने अवामी मसाइल और हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया. अब्दुल मजीद लारमी ने नरेगा, कैप एक्स के बशमूल दीगर स्कीम से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली मुआयना किया. काजू को खूबसूरत बनाने में और यहाँ पे डेवलपमेंट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा, और उसी वादे पर मैं कायम और दायम हूँ. इंशाल्लाह रहमान मैंने इनके साथ वादा किया कि इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को एक साल हमारी सरकार को पूरा हो जाएगा. 20 तारीख को मैं अपना दिखाऊँगा कि जो मेरे रिपोर्ट कार्ड होगा. और फंड्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए था उस तरीके से पैसा नहीं मिला, और ये जो मतलब थोड़ा सा इसमें काम हुआ वो तो मुझे लगता है कि बहुत कम है. अभी मैंने अभी कुछ यहाँ प्रोजेक्ट्स की जिक्र किया, कहा खासकर ये जो सर्किट हाउस की बात मैंने की, और कुछ यहाँ पे ब्रिजेस की बात की, रोड्स की बात की. मतलब फंड्स की कमी की वजह से थोड़ा ये रुक जाता है. मगर मैं ये कहूँगा कि कंट्रैक्टर का काम होता है, कंट्रैक्टर को ये मालूम होता है पैसा 6 महीने या 1 साल के बाद मिलता है. जो कंट्रैक्टर, जिसने भी कंट्रैक्टर, उसको पहले से ही पता होता है कि किस प्रोजेक्ट में पैसा है और किस में ऑनगोइंग काम जितने भी हैं तो उनको पैसा आने वाला होता है. पैसा कहीं जाता नहीं है, वो तो उनको पैसा मिलेगा. अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं वो काम करें, और पैसे की गारंटी मैं देता हूँ इंशाल्लाह रहमान. मार्च तक मैं गारंटी दे दूँगा, मार्च तक इनका ये पैसा रिलीज होगा. श्रीनगर में मुस्लिम पसला बोर्ड जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम उलमा के इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सरबराही मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अंजाम दी. इजलास में रोस्टर चिकन के बशमूल दीगर खाने पीने की चीज़ों की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की इस नशस्त में जो चीज़ें तय पाई गई वो इंतहाई अहम है चिकन और फ्रोज़न फूड के हवाले से, और इसमें ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे हमने ये फ़ैसला कर दिया कि चिकन और फ्रोज़न फूड पे पाबंदी बरकरार रहेगी, और मुकामी सतह के लाइव स्टॉक को ही इस्तेमाल किया जाए. लोगों से ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि जो लोग इस कारोबार से मुतासिर हैं वो स्विच ओवर करें दूसरे चीज़ों की तरह, या फिर मुकामी सतह के चिकन और गोश्त को ख़रीदें. और हालांकि कीमत के एतबार से ये महंगा होगा, लेकिन हराम के मुकाबले में इसका इस्तेमाल बेहतर और अफजल है. फूड एंड सेफ्टी के वाबस्ता अरकान का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने बरवक़्त कार्रवाई की, और लेकिन उम्मीद ये की गई कि वो उन लोगों की निशानदेही करेंगे जो इस हराम कारी और फ्रोज़न फूड के कारोबार में मुलव्वस हैं, ताकि लोग क्योंकि उनकी वजह से इस फूड की वजह से जो यहाँ फ्रोज़न फूड की सूरत में आ रहा था, डिकम्पोज था और बिल्कुल नाकारा था, और उसकी वजह से लोग मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए. आज जो इजलास मुनक़िद हुआ है, इस इजलास में इस पर तवील गौर व ख़ौज़ हुआ कि कश्मीर में चिकन फरोशी में जो कमियां, खराबियां और कोताहियां पाई गई हैं, और ये पिछले चंद महीनों से यहाँ के मुआशरे का एक अहम तरीन मसला बन चुका है, उस पर तवील गौर व ख़ौज़ के बाद जो चंद बातें तय हुई हैं वो ये कि अवाम से अपील की गई कि वो हराम से बचने का पूरा एहतमाम करें. अपने मकाम पर उसको बयान किया गया, चुनांचे उसका मुकल्लफ मुझे लोगों की आरा सुनने के बाद वहां तय ये हुआ कि तजवीज़ का एक खाका मुरतब किया, और वो तजवीज़ का खाका इस वक्त हमारे ज़ेर नज़र.
अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुलवामा में कांग्रेस ने दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है। उमर जान ने इसकी सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर एक इजलास का भी इनेकाद अमल में लाया गया। पुलवामा के साथ हमेशा इस्तेसाल किया गया है। ये आज का गढ़ नहीं रहा है इनका। 18 साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एमएलए रह चुका है। उसके बाद आज फिर से नए 5 साल के लिए इन्होंने वही जज्बाती नारे, वही खोखले वादे देकर इस पुलवामा के मजलूम आवाम को गुमराह किया। 1 साल 1 महीना होने को हो गए जिस सौदा के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पुलवामा के मजलूम आवाम के पास आया था, वो सौदा है कहाँ? पुलवामा की ब्यूटिफिकेशन है कहाँ? मैटरनिटी हॉस्पिटल है कहाँ? मैरिज हॉल है कहाँ? और उन युवाओं के साथ जो वादा किया गया था वो वादे कहाँ है? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इरोजन हुआ था 2019 में, जब वो रिश्ता करके आई थी 14 के चुनाव में कि हमने इस पिरवर कश्मीर को बचाना है, कहाँ बचाई वो पिरवर कश्मीर? कहाँ गए वो मुफ्ती साहब के ख्वाब? अगर ये ख्वाब था इस जम्मू कश्मीर को, यहाँ का तशख्खुस, मेरे बुजुर्ग का इज्जत, मेरे बुजुर्ग का विकार अगर छीना किसी ने, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है और लोगों में अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर बेदार किया जा रहा है और दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। मतलब आपने खुद देखा हरियाणा में कांग्रेस आगे चलता है, 90% चन्नू ने दिखाया। महाराष्ट्र में या कर्नाटका में, यहाँ दिल्ली में कि कांग्रेस आगे जा रहा है। बाद में जब रिजल्ट आता है वहाँ बीजेपी आती है। यहाँ जम्मू में इन्होंने चोरी की है, बीजेपी को 100% वोट दिए। हम उसके खिलाफ है। चोरी नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने चाहिए। जो जीतेगा हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके खिलाफ हमने पूरा इंडिया में हमारे लीडर राहुल गांधी साहब ने, मीर साहब ने, करा साहब ने शुरुआत की है। आज हमने दिवसर और कईमू में शुरुआत करेंगे। हम भी वोट चोरी के खिलाफ है। सरकार वोट चोरी है सरकार। इसी दौरान अवामी इत्तेहाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात की गई। हमने जो इनविटेशन आपको एक्सटेंड की थी उसमें क्लियर कट 2 चीज़ें हमने मेंशन की है। एक तो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 1 साल कंप्लीट किया है उस पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरा जो बड़गाम में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात होगी। आप सबको मालूम है कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप बिलखुसूस उमर साहब और फारूक साहब किस तरह वोकल थे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन हमने देखा कि जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको मौका दिया, मैंडेट दिया, तो पहली कैबिनेट और पहली असेंबली सेशन में ये दोनों चीज़ें जो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। लेकिन आपने देखा स्टेटहुड की रेजोल्यूशन जब लाई गई उस पर भी अपोजिशन की तरफ से, हमारी तरफ से कितना परसू किया गया कि उसमें भी लफ्ज़ों का हेर फेर रखा गया था। आर्टिकल 370 की बात कही थी ही नहीं। आज जो उमर साहब आज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, विद नो पावर टू परसू देम, जो उनके पास ताकत थी वो उन्होंने गवाई। जब तक दिल्ली स्टेटहुड नहीं देती है, जब तक बीजेपी स्टेटहुड नहीं देती है मरकज़ में, तब तक हम में से कोई ओथ नहीं उठाएगा। ये इंजीनियर साहब की तब भी जब वो इंटरिम बिल पर रिलीज हुए थे तब उन्होंने उमर साहब को सजेस्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से उमर साहब को इख्तिदार की लत पड़ी थी। वो गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रोटोकॉल का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने लोगों की एस्पायरेशन और सेंटिमेंट्स को ताक रखकर एक विदाउट गिविंग एनी थॉट टू इट उन्होंने हुकूमत संभाली। आज 1 साल पूरा हुआ। उमर साहब ये बताए, शाल देकर दिल्ली जाकर यस बॉय बनकर उन्होंने स्टेटहुड की प्रोग्रेस का हमें बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को बता दीजिए
जिन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया कि उस पर क्या पेश रखते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर के सरबराह संजय सराफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने बात की। उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने जम्मू कश्मीर की एनसी सरकार और मरकज़ पर जोर दिया। साल पूरा हो गया। आज तक हमने देखा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद में 100 दिन पूरे करती है तो सब लोग सामने आते हैं और 100 दिन का अपना बजट रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि लो जी, ये हमारे कैलेंडर में हमारे 100 दिन में हमने क्या क्या काम किया है। यहाँ 100 दिन नहीं हो गए, यहाँ 360 दिन हो गए, 65 दिन हो गए। वो 365 दिन के बाद भी ये सिर्फ वही रोना रो रहे हैं कि स्टेटहुड अलग बात है। जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उन लोगों ने इनको वोट डाला है, वोट डाल के ऑनरेबल सीएम बना दिया। तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ अगर आप ग्राउंड जीरो पर देखें, हमने तो कहीं गैस सिलेंडर देखे नहीं, न किसी को गैस सिलेंडर आज तक मिला, न 200 यूनिट बिजली मिली, न चावल मिला 5 kg का। अब उन सबको भी अगर एक साइड में देखें तो जो लीज आउट करते हैं होटल्स, जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। राज्यसभा के एक इंतखाबी उम्मीदवार के नाम को एनसी व कांग्रेस की जानिब से क़तईयत नहीं दी जा सकी। दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत का सिलसिला हनूज है जारी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर नायब वज़ीर आला और सकीना यट्टू के बयानात जम्मू कश्मीर के तई भाजपा की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। JKAS 2019 के अफसरान प्रोविशन के बावजूद महरूमी से दो चार। वहीदुर रहमान पर्रा ने एनसी सरकार पर की तनकीद। मेराज मलिक पर आयत PSA खत्म होना चाहिए, रिहाई अमल में लाई जाए। आगा रुल्ला का मुतालबा। हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी पर भी दिया जोर। सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए, फोर्सेस को कर दिया गया चौकस। महलूक फौजी एहलकारों को LG ने पेश किया खराज बाद अज मर्ग। श्रीनगर में उलमाए जम्मू कश्मीर का मुनक्किद हुआ इजलास। रूस्टर चिकन से मुताल्लिक़ किया गया तबादला ख्याल। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जानिब से वोट के हक में अवामी शऊर बेदारी का सिलसिला है जारी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।